Good evening, sir. Myself Shilpa. So, sir, actually, what we are arranging a session about mental mantra. So, in mental mantra, our guest lecture, we are doing a face-to-face like like a session. That's what our guest lecture share his journey and give some tips or motivation that many of the students is that they are not knowing about all those topic and somewhat some problem is going on, so our guest lecture tell about all those things so our student can motivate and it's helpful for everyone, so that's why we're arranging a mentor mantra session. So today our guest lecture is Vishal Sir, who is the assistant professor of English. All right. Yeah. So sir, Thank you, Shil. can you tell about your journey? Thank you so much, Shilpa, for a brief introduction. First of all, I'm very thankful to the Quartersoft who has given me such a wonderful opportunity to join with you people and get benefited for the other students also. And what the students need. The students, they are looking forward to complete their education. They want to join good corporate sectors. They want to join for a good company. But some requirements are there. Requirements, especially if we talk about like communication. Right. Communication is one of the important factor. Yeah. If somebody says that I can speak English, I can speak good English, then there is a difference. So your communication is a guarantee success. Now, before I begin, I would like to also discuss about the role of communication in the corporate sectors in a company and how we should go ahead. Right, sir. A very brief introduction about me, as Shilpa has already given introduction. I am Vishal Kumar, currently working as an assistant professor in the Department of English in Noida Institute of Engineering and Technology, situated at Greater Noida. And it is an autonomous institute. Since 2001, it has been established. Now, I have got more than 14 years of experience teaching English communication. Communication is one of the important skills which a student must have or possess this skill. Now, it is a practice. I want to learn how to text a good mail. So before texting a mail, I have to draft the mail, and I have to also see that whether is there any grammatical mistakes, is there any punctuation mistakes or not. And finally, we send the mail to the officials, to our colleagues. Now, if there are some errors, what impact the person will see finally when you send the mail? So there will be a bad impression. Now, if you want to create a good impression, you must also have, or you have to learn the ability of writing skills also. Right, sir. So communication does not mean only speaking. It revolves around LSRW. So L stands for listening skills, and S stands for speaking skills, so on, like reading skills, and then speaking skills, listening skills, and writing skills. So these are LSRW. Now, before I want to give you a thorough discussion on the topic about roles of communication in the corporate sectors. So not only discussions I will do, I would also discuss about some technical points. I will discuss some technicality which will broaden some ideas of the students, and they may get benefited from this session. So allow me to show some of the important PPTs
in the form of PowerPoint presentation so that we can broadly discuss, and finally I can also take some of the questions which are curiously asked by the students. Sure, sir. So may I proceed? Yes, sir. Sure, I'm sir. sharing my computer screen. Yeah, sure, sir. You should. Thank you so much. I would like to share my computer screen, and please hold on. Sure, sure. Shil, from your end, host disabled. Please able the participants sharing screen. Sir, wait. Sir, now please try. All right. Yeah, now it's working. Okay, sir. All right. So Yes, is sir. it visible? Yes, sir. It's visible. All right. So thank you so much once again. The youths are the assets of the nation. So youths, the students, they have to work hard. Life should be full of struggle so that you can learn it from some practical experiences. These days, the students, they are only focusing to clear the exam and get the degrees. But Right, sir. this will not finally help you up. You must go ahead, you must improve your communication skills. So I would like to give a thorough introductions about communications and some of the important technicalities about how to improve our communication skills. What are some good ways? What are some effective ways to improve your communication skills? So NIET, it is an autonomous institute which is established in 2001, as I told you already. Yeah. Now I proceed with my topic related to communication. So first of all, I welcome all the participants who are joining to me. It is a grateful time, it is a learning time, and we must take it full advantage from this session. In this session, I'm going to discuss majorly on the topic of communication. Now, these are some content which will which will help us to understand that what exactly this entire topic is going to be. So first of all, we will target what is communication. We shall also discuss about the role of communication. We shall discuss the importance of communication skills. Now, English is the language. Hindi is also language. There are various languages. So Yes. language is a tool. It is a tool which is helping us to communicate, right? If somebody Yes. is speaking Spanish, if somebody is speaking Mexican, so that is a language. Now, if somebody is expressing his views, so it does not mean that his communication is poor. So communication we have started since our childhood, since our birth. We have started learning the things. Like a child who is born, he touches the thing, she touches the things, and that touching is also communication. By and by, the child learns how to utter the words, how to speak some words, and then when the letter is joined, it becomes a word. And when the word is joined, it becomes a sentence. So in this way, the importance of communication we shall discuss here. We shall also discuss and throw some light about the barriers. So barriers means some impediments, some kind of problems that why my communication is not improved. What are some reasons that why your communications is not able to go in a flowing way? So flowing communication also we shall discuss. Barriers means some kind of problem, some kind of impediments, बाधाएं, कुछ प्रॉब्लम, उसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे. We shall also discuss how to overcome the barriers. इन बाधाओं को, इन परेशानियों को कैसे हम दूर कर सकते हैं, we shall also discuss here.
And I shall also discuss about some methods of communications. Like methods यही है कि मैं बोलकर कम्युनिकेशन कर रहा हूँ, इट्स अ मेथड. लिख कर रहे हैं, दैट इज अ राइटिंग मेथड. सो ये सब एक मेथड है. वी शैल डिस्कस हियर. वी शैल ऑल्सो डिस्कस अबाउट हाउ टू इम्प्रूव कम्युनिकेशन स्किल्स. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन होगा हमारा. Yes. एंड व्हाट इज द रोल ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन. क्या इंपॉर्टेंट है इफेक्टिव कम्युनिकेशन का, इससे क्या इंप्रेशन पड़ता है. सो आपने सुना भी है, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन. So how Right. we need to create this impression, we shall discuss over here. We shall discuss about the advantages of effective communications. And finally हम strategies पे बात करेंगे कि अपनी communication को कैसे effective बना सकते हैं. बहुत सारे तरीके आप खुद अडॉप्ट कर रहे हैं, आप खुद अप्लाई भी कर रहे हैं, प्रैक्टिकल चीज़ों पर आप उसको फॉलो भी कर रहे हैं. बट कुछ स्ट्रेटजीज अगर हम देख लें, समझ लें, तो हमारा मेंटल जो एबिलिटी है, रिटेंशन पावर है, वो कुछ हमें आइडिया मिल जाएगा और इस तरह से हम अपनी कम्युनिकेशन को शार्प कर सकते हैं. फाइनली समरी पे हम डिस्कस करेंगे. सो स्वामी विवेकानंद इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फिलोसोफर ऑफ इंडिया एंड ही सेज, उनका एक बहुत ही मोटिवेशनल एक स्टेटमेंट है. उनका ये मानना था कि मेहनत से ही इंसान को फल मिलता है. सो अब किस तरह की मेहनत हमें करना है. तो उनका कहना है कि उठो, जागो और तब तक ना रुको जब तक आप अपने लक्ष्य को हासिल ना कर लो. सो एक बहुत ही गहरी बात कही जा रही है यहाँ पर, इंपॉर्टेंट डिस्कशन है यहाँ पर. तो हमें मेहनत करनी है. नाउ स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग, बोलने से ही तो बोलना आएगा, लिखने से Right. हमको लिखना आएगा. राइटिंग कम्स बाय राइटिंग. नाउ इट इज नॉट लाइक दैट कि केवल हम लिसनिंग कर रहे हैं, हमने कुछ 4 वीडियोस देख लिए और हम अपने कम्युनिकेशन को इम्प्रूव कर लें. नो, इट इज अ regular practice, right? Right, So sir. follow the guideline of Swami Vivekanand, and he is one of the greatest philosopher, and he has also given many important speeches, and one of the famous speech was given in the Chicago, America. So there he says, my brothers and sisters of America. So all the people, they got so much happy that the way of speaking was so effective. So एक सेंटेंस से ही पता चल गया कि इनका कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग है, इफेक्टिव है, तरीके से ये बोल रहे हैं. चलिए हम कुछ आगे बढ़ते हैं, सेशन को आगे बढ़ाते हैं. सो क्या है ये कम्युनिकेशन. सो कम्युनिकेशन ये बहुत सारी चीज़ों को इंटरकनेक्ट करता है. Right. इंफॉर्मेशन, स्पीच, डिस्कशन, कॉन्वर्सेशन, राइटिंग, टेक्नोलॉजी, टीम वर्क, इंटरव्यू, स्पीचेस, सोशल मीडिया पे आप एक्टिव रहते हैं, टेक्नोलॉजी, चैटिंग कर रहे हैं, आप नेटवर्किंग से जुड़े हुए हैं, टीम वर्क कर रहे हैं. ये सारा रोल है कम्युनिकेशन का, राइट? Right. चलिए आगे बढ़ते हैं. सो वी कैन सी दैट देयर आर 2 persons here. One person is interacting to another person. Somebody is asking questions. If somebody is asking questions, we will listen to the questions and then we will respond to that. Now, if I ask to someone that, how are you? Simple आप बोलेंगे, I am fine, thank you sir, and you. तो अब एक कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हो गई है. कुछ लोग कहते हैं सर इंग्लिश बोलना ही कम्युनिकेशन है. नो, इट्स नॉट लाइक दैट. स्पीकिंग हिंदी इज ऑल्सो कम्युनिकेशन. स्पीकिंग some other languages, that is also communication. कम्युनिकेशन का मीनिंग क्या है, ये चीज हमको समझना होगा. सो कम्युनिकेशन इज एन आर्ट, ये एक कला है और इस कला को हमें निखारना है. हमें प्रैक्टिस से, प्रैक्टिकल चीजों पर हमें ध्यान देना होगा. तो हम अपने कम्युनिकेशन को इम्प्रूव कैसे करें, उस सब चीज़ों पे हम डिस्कस करेंगे. लेकिन सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ये कम्युनिकेशन हम कैसे इसको हासिल करते हैं. सो देयर आर 5 सेंस ऑर्गन इन आवर बॉडी. आईज, नोज, टंग, स्किन, ये सेंस ऑर्गन है हमारे, राइट? और इन सब चीज़ों को स्टोर करता है ब्रेन, हमारी मेमोरी. बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपने पास में किए थे, आपको याद होगा कुछ चीज़ें. तो ये सारी चीज़ें, ये जो कम्युनिकेशन स्किल्स है, ये किस पर बेस्ड है? सो कम्युनिकेशन स्किल्स बेस्ड है
लाइक LSRW जो मैंने कहा था आपको कि इंसान जो है कम्युनिकेशन जो करता है पूरी लाइफ में वो केवल यही करता है, लिसनिंग। लिसनिंग जो है ये एक स्किल है जिसको हम 45% लैंग्वेज को हम रिटेन करते हैं, हम सीखते हैं। मतलब हम इतना ज्यादा नहीं बोलते, 24 घंटे कौन बोल सकता है, नोबडी कैन स्पीक होल डे लॉन्ग। सो 45% ऑफ कम्युनिकेशन इज रिटन, इट इज लर्नड फ्रॉम बाय लिसनिंग स्किल्स। सो 4 स्किल्स होते हैं हमारे। सबसे पहला हमारा लिसनिंग स्किल्स हुआ। लिसनिंग में आप म्यूजिक सुन सकते हैं, किसी के क्वेश्चंस को सुन सकते हैं, इंटरव्यूअर ने कुछ क्वेश्चंस किया, आपने उनकी बात को सुना, टीचर ने आपसे कोई क्वेश्चन किया, आपने उनकी बात को सुनकर उनको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। तो ये लिसनिंग स्किल ही है जिसके वजह से हम भाषा बोल पा रहे हैं, इसी की वजह से हम बहुत सारी चीज़ों को सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, राइट, उसको डिकोड करते हैं। सो कम्युनिकेशन हम कह सकते हैं कि टोटल 70% जो कम्युनिकेशन होता है ना वो हम LSRW से करते हैं, राइट, 70%। और राइटिंग स्किल्स आप कितना करते हैं, आप 9% जो है आपका राइटिंग स्किल्स होता है। राइटिंग में आप क्या करते हैं, आप एग्जाम दे रहे हैं, दैट इज राइटिंग स्किल्स। टेस्ट पेपर आप लिख रहे हैं, एग्जाम फिल फॉर्म कर रहे हैं, रीडिंग स्किल्स है। आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, मैगजीन पढ़ रहे हैं या एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, रीडिंग करने से ही आपको रीडिंग स्किल्स आएगी। सो रीडिंग स्किल्स इज ऑल्सो द वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, और ये एक इंपॉर्टेंट स्किल्स है। रीडिंग करेंगे तो हमारा राइटिंग स्किल्स बहुत ज़्यादा इंप्रूव होगा, लिसनिंग करेंगे तो हमारा स्पीकिंग स्किल्स इंप्रूव होगा। तो ये दोनों भी इंटरकनेक्टेड है। रीडिंग स्किल्स हम 16% हम करते हैं, ये एक रिसर्च में ये आइडिया जो है इसको बताया गया था। और 30% जो कम्युनिकेशन स्किल्स है वो है स्पीकिंग स्किल्स। स्पीकिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। हम अपनी बात को रख सकते हैं, इंटरव्यूअर के सामने हम उनका जवाब दे सकते हैं। स्पीकिंग हेल्प्स अस टू कम्युनिकेट। स्पीकिंग से क्लैरिटी मिलेगा, स्पीकिंग से आप उस आइडिया को क्रैक कर सकते हैं, राइट। कॉन्फ्रेंस चल रहा है, कॉन्फ्रेंस में आपने अपनी आइडियाज को शेयर किया और जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उस आइडिया को वो समझ पाएंगे। तो स्पीकिंग करना होगा, आपको कम्युनिकेट करना होगा। जैसे कि एक खिलाड़ी और वहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है और प्रेस कॉन्फ्रेंस पे ही इज गिविंग some important strategies about his team and he is talking to the audience। तो जिस तरह से वो बातें कर रहा है, स्पीकिंग कर रहा है, वो बोल रहा है, तो पब्लिक क्या होगा, जो लोग उनको सुन रहे हैं वो लिसनिंग स्किल कर रहे होंगे। तो यहाँ पर ताली जो है 2 हाथ से बजनी चाहिए, एक अगर स्पीकिंग कर रहा है तो एक लिसनिंग भी करेगा, राइट। तो इस तरह से हमारा कम्युनिकेशन होता है। तो 70% जो ये हम देख रहे हैं ये LSRW होता है। अब ये रहा 30%। 30% जो होता है हम नॉन कम्युनिकेटिंग, जिसमें हम बोलते भी नहीं है। ना बोलना भी एक कम्युनिकेशन है। रिसर्च के स्टडी में ये भी हमने देखा है कि एक कलर जो होता है, मान लीजिए रेड कलर हो रहा है, आप व्हीकल से जा रहे हैं और ट्रैफिक सिग्नल पे रेड सिग्नल हुआ है तो आप वहां पर रुकेंगे। तो रेड क्या हो रहा है कि इंडिकेशन दे रहा है कि आपको रुकना है। सो एक कलर भी कम्युनिकेशन कर रहा है, लेकिन ये किस तरह का कम्युनिकेशन है, ये कहलाएगा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन या नॉन कम्युनिकेटिंग। इस तरह के जो कम्युनिकेशन होते हैं वो 30% होता है। जैसे कि कलर के बारे में एग्जांपल दिया मैंने, ठीक ऐसे ही मान लीजिए आपने देखा कि किसी को आपने दूर से उनको हाय कहा और एक फ्रेंड काफ़ी दूर है, वो मार्केट से आ रहा होगा और उस व्यक्ति ने आपके इशारों को समझा कि आपने उनको एक एक्सप्रेशन दिया है, एक बाय कहा या कुछ कहा। आपने बोला भी कुछ नहीं, केवल आपने बाय कहा और वो समझ जाएगा कि अगर उसने आपको देखा है तो वो भी इस तरह से अपना हाथ उठाकर वो भी एक कम्युनिकेशन करेगा, एक सिग्नल करेगा। सो दैट इज ऑल्सो कम्युनिकेशन। तो इस तरह के जो कम्युनिकेशन होता है वो 30% होता है। जैसे कि हम हैंडशेक करते हैं किसी से, तो हैंडशेक करना, 2 हाथ अगर इस तरह से हम हैंडशेक कर रहे हैं तो क्या है ये, नॉन कम्युनिकेटिंग, राइट। आप स्पीच कैसे दे रहे हैं, आपका बॉडी लैंग्वेज कैसा है, आपका फेशियल एक्सप्रेशन कैसा है, आपका ड्रेसिंग सेंस कैसा है, ये सब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहलाएगा। सो लेट्स गो अहेड। वन ऑफ द अमेरिकन जर्नलिस्ट
जिनका नाम है डैनियल वेबस्टर। ही सेज, इनका मानना था कि कम्युनिकेशन में एक पावर होती है, और ये कहते हैं, जर्नलिस्ट कहते हैं कि इफ ऑल माय पोसेशंस वर टेकन फ्रॉम मी विद वन एक्सेप्शन, कि आप जो कुछ भी मेरे पास अधिकार में है, मेरे पास कार है, मेरे पास बैंक बैलेंस है, मेरे पास बहुत सारे धन है, आप सब ले लीजिए, बस एक एक्सेप्शन पर एक चीज छोड़ दीजिए, और वो है पावर ऑफ कम्युनिकेशन। आप केवल कम्युनिकेशन मेरे पास छोड़ दीजिए, और उसी की वजह से मैं उन सबको रिगेन कर लूंगा, वापस उन सबको पा लूंगा। मतलब आपने किसी व्यक्ति से उसका सब कुछ छीन लिया, उसको कंगाल कर दिया, लेकिन उसने अपने कम्युनिकेशन की वजह से, मेहनत कर कर, अपने स्पीच की वजह से, अपने इंटरव्यू क्रैक करने की वजह से कहीं ना कहीं वो सेटल हो जाएगा, और वो उन सब चीज को रिगेन कर सकता है। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक डीप डाइव डिस्कशन कहा गया है। सो इफ माई possessions were taken from me with one exception, I would hope to keep my power of communication, for by it I would regain all the rest। तो वो सब कुछ पुनः उसको प्राप्त कर लेगा जो कुछ भी उससे आपने स्टार्टिंग में ले लिया था। तो डैनियल वेबस्टर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट रहा कम्युनिकेशन से रिलेटेड। अब हम कुछ टेक्निकल पॉइंट्स पर डिस्कस कर लेते हैं। तो सिंपल थिंग हम ये कह सकते हैं कि ये जो वर्ड कम्युनिकेशन है, ये लैटिन वर्ड से लिया गया है। सो इटमोलॉजिकली, यानी कि हिस्ट्री में अगर हम देखें कि आखिर ये वर्ड आया कहाँ से, इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत सारे वर्ड्स ऐसे हैं जो लैटिन से, फ्रेंच से ली गई है। ऐसे ही हमारे हिंदी में सिमिलर कर लीजिए, संस्कृत से बहुत सारे वर्ड को अडेप्ट किया गया है, राइट। सो कम्युनिकेयर, ये जो वर्ड है ये लैटिन भाषा से ली गई है। लैटिन कौन सी भाषा होती थी? जब रोम का शासन हुआ करता था 5000 साल पहले, अब उस दौरान जो भाषा होती थी उस समय वो कम्युनिकेट नाम का कोई वर्ड यूज करते थे। तो उसका मतलब होता था टू शेयर, मतलब अपने विचार को शेयर करना, आइडियाज को बताना। तो अब आप समझ पा रहे हैं कि ये जो वर्ड है लैटिन से अडेप्ट किया गया है। इंग्लिश में इसको कम्युनिकेशन कहते हैं इसी चीज को, यानी कि इसका मतलब भी शेयर करना होता है। क्या शेयर करना है? हम शेयर कर रहे हैं एक्सचेंज ऑफ मीनिंग्स, राइट। आइडियाज को हम शेयर कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन को शेयर कर रहे हैं, हम एक रिटन कम्युनिकेशन को शेयर कर रहे हैं। सो कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस, ये एक प्रकार का प्रोसेस होता है। शेयरिंग ऑफ आइडियाज, थॉट्स, योर फीलिंग्स, इमोशंस, ये सारी चीजें कम्युनिकेशन का पार्ट है। कम्युनिकेशन में हम ये कह सकते हैं कि हम सिंपली द एक्सचेंज ऑफ थॉट, जो मेरा विचार है, जो मैं समझ पाया हूँ या जो मैं जानता हूँ, मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, वो चीजें शेयर करना ही कम्युनिकेशन का पार्ट है। अब क्या शेयर करते हैं हम? कोई मैसेज हो सकता है, कोई स्पीच हो सकता है, कोई इन्फॉर्मेशन है, कोई पिक्चर शेयर कर रहे हैं, कोई वीडियो शेयर कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर करना होता है। अब ये शेयर कर सकते हैं तो बोल के कर सकते हैं, स्पीच के द्वारा, या सिग्नल्स कर सकते हैं, इशारा किया जैसे मैंने, राइट। सो ये भी कम्युनिकेशन है। नाउ राइटिंग से हम शेयर करते हैं, बिहेवियर से हम शेयर करते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति बड़ा गुस्से में है और आपने उनसे हेलो कहा लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। अब आपको उनके बिहेवियर पे डाउट होगा कि आज ये मुझसे नाराज है, तो सिंपली आप एक मैसेज आपको मिल जाएगा उसकी बॉडी एक्सप्रेशन से, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से, दैट पर्सन इज एंग्री विद यू। सो आपने उनको सिंपल सॉरी कहा और फिर वो खुश हो गया। तो इस तरह से आप कम्युनिकेशन को करते हैं। सो कम्युनिकेशन में 3 एलिमेंट्स का होना जरूरी है, मतलब इसके बिना कम्युनिकेशन नहीं हो सकता। किसके बिना? मतलब एक तो मैं हूं स्पीकर और एक आप है लिसनर, राइट। और ये दोनों जो चीजें हैं इसमें एक मैसेज का होना जरूरी है, इंफॉर्मेशन का होना जरूरी है, राइट। सो 3 बेसिक एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन होना चाहिए, जिसमें कि सेंडर, एक मैसेज और रिसीवर होता है। तो सेंडर क्या करता है? मैसेज को सेंड करता है, और रिसीवर क्या करता है? उस मैसेज को रिसीव करता है, राइट। राइट। सो इन दिस वे वी कैन से दैट सेंडर सेंड्स द मैसेज और एनकोड्स द मैसेज। हम इसको एनकोड का भी एक नाम दे सकते हैं, किसी मैसेज को एनकोड करना, अपने हिसाब से उसको तैयार करना,
अब जैसे मैं इंग्लिश बोल रहा हूँ या हिंदी बोल रहा हूँ, तो ये एक एनकोडिंग हो रहा है और आप अपने हिसाब से उस मैसेज को डिकोड करेंगे। तो एनकोड का ऑपोजिट मीनिंग हुआ डिकोड करना, किसी मैसेज को अपने हिसाब से पता लगाना, इंटरप्रेट करना। सो व्हाट आर द मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन? क्या तरीका है कम्युनिकेशन का? सिंपल आप कह सकते हैं सर देखो, एक तो लिख कर हो सकता है, दैट्स गुड, रिटन कम्युनिकेशन बोल देते हैं आप। अगर हम स्टार्टिंग से देखें तो हम देख सकते हैं कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन एक मेथड है। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो नहीं बोल पा रहे हैं, दे आर डेफ एंड डम, वो गूंगे हैं या बहरे हैं, फिजिकली हैंडीकैप्ड है, कोई प्रॉब्लम है, राइट? तो क्या वो कम्युनिकेशन नहीं करते? ऑफ कोर्स वो भी कम्युनिकेशन करते हैं, बट बाय सिग्नलिंग, राइट? तो इस Right. तरह के कम्युनिकेशन को हम कहते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। अब वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है? मीन्स बाय स्पीकिंग, if I'm speaking to you, you will respond, you will give the answer to me, and both of us will get connected to our speech. So this is called verbal speech. Verbal speech में speech हो सकता है, किसी व्यक्ति का भाषण हो सकता है, पॉलिटिकल पार्टीज जाकर कन्विंसिंग कर रहे हैं, कहीं पर कैंपेन कर रहे हैं, तो वो अपने स्पीचेस को दे रहे हैं, तो ये एंगेज होता है, स्पीकिंग से रिलेटेड होता है। इस तरह से एक और मेथड्स है कम्युनिकेशन का, वो है बॉडी लैंग्वेज। देखिए बॉडी लैंग्वेज, अगर मैं इस तरह से बैठा हूँ बहुत देर से, तो आपको लगेगा कि स्पीकर हो सकता है कि उदास है या परेशान है, राइट? Right. सो आपके फेशियल एक्सप्रेशंस, आपका आई कांटेक्ट, आपका पोस्चर, आप कैसे बैठे हैं, आप कैसे खड़े हैं, आपने कैसा कपड़ा पहना हुआ है, आप किस तरह से आप इंटरव्यू में बैठे हुए हैं, ये भी मैटर करता है। इंटरव्यू में आप मान लीजिए क्रॉस लेग बैठे हैं, पैर पे पैर रख के बैठे हैं, सो Yes. दैट इज नॉट गुड। या मान लीजिए आपके हाथों में पेन है और आप इंटरव्यूअर के क्वेश्चंस दे रहे हैं और इस तरह से आप आपका जेस्चर है, तो दैट इज ऑल्सो नॉट गुड। मीन्स दिस इज ऑल्सो काउंटेबल, ये भी कम्युनिकेशन का ही पार्ट है। ब्रॉडर स्टडी में ये पता चला है कि बॉडी लैंग्वेज भी कम्युनिकेशन का ही पार्ट है। Right. अब कोई मान लीजिए नर्वस है, बहुत घबराया हुआ दिख रहा है, तो आपको लगेगा कि दिस पर्सन इज नर्वस। कोई कॉन्फिडेंट है, उनकी आंखों से आपको झलक जाएगा। सो सिमिलरली रिटन कम्युनिकेशन, विजुअल कम्युनिकेशन, आजकल विजुअल कम्युनिकेशन हो रहा है, आप कोई वीडियोस देख रहे हैं, आपने कोई इमेजेस देखा, दीज आर ऑल ऑल्सो कम्युनिकेशन। नाउ एंड द लास्ट वन इज लिसनिंग वन। सो लिसनिंग यानी कि हम सुनकर, किसी की स्पीच को आप सुन रहे हैं, किसी की बात को सुन रहे हैं, so that is also communication. So ये कुछ important discussion हम कर रहे हैं, so that the students can understand broadly that what is communication. We have learned that this word has come from the Latin language communicare, and that means to share something, right? And what exactly we are sharing? We are sharing some information, a message. Now there are three elements of communication. One is a sender, one is a receiver, and the element which is required is a message, right? Now I would like to throw some light on the process of communication. कैसा process होता है इसका, कैसे चलता है ये communication? तो दो जने हैं, एक तो है sender, इसको हम टेक्निकल भाषा में इंस्टिगेटर भी बोल सकते हैं, और एक है रिसीवर, जो इस मैसेज को रिसीव करेगा लास्ट में। बीच में जैसे मैंने बताया था आपको एक मैसेज की जरूरत होगी। अब किसी मैसेज को भेजने के लिए, आपको सेंड करने के लिए, व्हाट एग्जैक्टली यू नीड ए चैनल। आपको एक चैनल की जरूरत है। व्हाट्सएप क्या है? एक चैनल है। इंटरनेट क्या है? एक चैनल है, राइट? तो आप एक चैनल का यूज करते हैं, इंटरनेट को यूज करते हैं, और उससे आप मैसेज को भेजते हैं। चैनल में जैसे कि टेलीविजन हो सकता है, रेडियो हो सकता है, मोबाइल फोन हो सकता है। मोबाइल फोन इस समय क्या कर रहा है? एक डिवाइस का काम कर रहा है। जो भी डिवाइस है उसको हम चैनल का नाम दे देते हैं। Right. मतलब आप और हम अगर आमने सामने बैठे हैं, तो आप बोलोगे सर इसमें चैनल क्या है? एयर, इसमें जो हवा है ये भी एक चैनल का काम कर रहा है। Right. मान लीजिए किसी ऐसे रूम पे बैठे हैं और वहां पर आवाज गूंज रही है, तो क्या होगा? डिस्टर्बेंस होगा, राइट? तो एयर मैटर करता है। उसके बाद हमें चाहिए एक मीडियम। मीडियम का मतलब हम कैसे भेज रहे हैं? बोलकर भेज रहे हैं, ऑरली, लिखकर भेज रहे हैं, रिटन, हम ईमेल कर रहे हैं, ईमेल, व्हाट्सएप टेक्स्ट कर रहे हैं, टेक्स्ट हो जाएगा, वीडियोग्राफिंग कर रहे हैं तो वीडियो हो जाएगा। तो इस तरह का ये मीडियम कहलाता है। और लास्ट में ये मैसेज पहुंच जाता है रिसीवर के पास। रिसीवर क्या करता है?
उसको अपने हिसाब से उसको डिकोड करता है, उस मैसेज को, उस आइडिया को, उस इंफॉर्मेशन को, और लास्ट में वो उसका फीडबैक भी दे देता है, राइट? सो आफ्टर द सेशन ऑल्सो students will also give me the feedback that how was the session, how you feel like. So this is one of the important process of communication. Without this process, communication is not possible, right? Right. Now we move ahead, and now we shall discuss about the role of communication in industry, in corporate sectors, in schooling, in education, and everywhere. So क्या रोल है कम्युनिकेशन का, क्या मकसद है? सिंपल इसका यही रोल है कि एक तो ये इंफॉर्मेशन को आगे पहुंचा रहा है, तो हम किसी को इन्फॉर्म करने के लिए कम्युनिकेशन करते हैं, टू गिव इंस्ट्रक्शंस देने के लिए, टू ब्रिंग अ पॉजिटिव एटमॉस्फेयर्स, टू शेयर इन्फॉर्मेशन, टू कीप मिसअंडरस्टैंडिंग अवे। कई बार गलत फहमी हो जाती है, उस व्यक्ति को लगता है कि वो आप झूठ बोल रहे हैं, लेकिन सीबीआई इंक्वायरी हुई, बाद में पता चला कि नो, दैट वाज नॉट अ लायर, ही वाज टेलिंग द ट्रुथ। सो टू कीप द मिसअंडरस्टैंडिंग अवे, we need communication, and there is a big role of communication over there. किसी भी प्रोडक्टिविटी को प्रमोट करने के लिए हमें कम्युनिकेशन की जरूरत पड़ेगी। सो कम्युनिकेशन का एक इंपॉर्टेंट रोल है। बहुत सारी कंपनी एडवर्टीजमेंट कर रही है, एडवर्टाइज कर रही है। क्यों कर रही है? क्योंकि वो प्रमोट कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट को, ठीक है? सो इट कनेक्ट्स यू विद योर कस्टमर्स। आप अपने कस्टमर से कनेक्ट हो रहे हैं, आप अपने क्लाइंट से कनेक्ट हो रहे हैं, अपने फ्रेंड से, सोशल लाइफ में आप कनेक्ट हो रहे हैं, फैमिली में कनेक्ट हो रहे हैं। तो इस तरह से कम्युनिकेशन का रोल है ये। नाउ इट ऑल्सो हेल्प्स टू मोटिवेट। किसी को अगर हम मोटिवेट करेंगे, डेफिनेटली ही विल डू समथिंग, कुछ ना कुछ वो इंपॉर्टेंट करेगा अपनी लाइफ में। टू कंट्रोलिंग करने के लिए द रोल ऑफ कम्युनिकेशन इज इंपॉर्टेंट। अब देखिए, आरबीआई क्या करते हैं, सारे बैंक्स जितने भी हैं, इसके सब्सिडरीज जो बैंक है, सबको कंट्रोल करने के लिए वो कुछ नोटिफिकेशन निकालता है। तो उन्होंने जो कम्युनिकेशन किया, उन सभी बैंक्स को वो प्रोटोकॉल फॉलो करना होगा। सो दिस इज कॉल्ड कंट्रोलिंग ऑफ सिस्टम, एंड इट ऑल्सो comes from the communication. So without communication it's not possible. So ये सारी चीजें हमको समझना होगा कि इसलिए हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं। So to manage something, to give information, these are some good roles of communication. Now we move ahead. अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं सिंपली इंग्लिश लैंग्वेज पर। देखिए, इंग्लिश एक लैंग्वेज है एंड इट इज अ ग्लोबल लैंग्वेज। Hindi is also language, but if I go to America, if I go to some other country, foreign countries, if I say someone कि मुझे एक गिलास पानी चाहिए, maybe that person will not understand to me, or maybe he will little bit understand, right? लेकिन क्या फर्क पड़ रहा है वहां पर? एक लैंग्वेज का फर्क पड़ रहा है। सो कोई जरूरी नहीं कि आप विदेश जा रहे हैं तो इंग्लिश सीखेंगे। नाउ इंग्लिश हैज बिकम वन ऑफ द मोस्ट important language in profession sector. प्रोफेशनलिज्म में इंग्लिश का आना बहुत जरूरी है। अब इंग्लिश को हम सीखे कैसे? मैं ये नहीं कहता हूं कि हमें अंग्रेज बन जाना चाहिए, बट हमें कम्युनिकेशन कैसे करना है कॉर्पोरेट सेक्टर में, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, इंडस्ट्री में, उसको हमें सीखना होगा। सो इट इज अ चैनल, इट्स हेल्पिंग अस। सो इंग्लिश इज नॉट ओनली द मोस्ट इंपॉर्टेंट लैंग्वेज, बट इट इज यूनिवर्सली स्पोकन। दुनिया में सबसे जो लार्जेस्ट बोले जाने वाली जो लैंग्वेज है वो मैंडरिन चाइनीज है, बट इंग्लिश इज ऑल्सो साइमल्टेनियसली प्लेइंग ए इम्पॉर्टेंट रोल। इंडिया चाहता है ट्रेड मार्केटिंग करना, बिजनेस करना, आउट ऑफ कंट्री में स्टडीज करने के लिए स्टूडेंट जाना चाहता है, तो उस समय हमें ये लैंग्वेज आनी चाहिए, राइट? सो अब आप देख सकते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज का एक इम्पॉर्टेंट रोल है। इट हेल्प्स टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली विद कलीग्स एंड सुपीरियर्स। कलीग्स कौन होते हैं? जो आपके सहकर्मी हैं। आप कहीं ज्वाइन करते हैं तो आपके साथ जो आपका जूनियर हो सकता है, वो सीनियर हो सकता है, और वो आपसे कम्युनिकेट कर रहा है। हो सकता है वो इंग्लिश में बोले। सो दैट इज वाई इंग्लिश लैंग्वेज विल हेल्प यू टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली विद योर सीनियर्स, जूनियर्स, एंड you with your colleagues. It also has a great importance to perform beyond basic business standards.
देखिए बिजनेस, हर कंपनी चाहता है कि वो अपने ग्रॉस इनकम को बढ़ाए। बहुत सारे लोग हैं जॉब करते हैं, वो कहते हैं सैलरी कितनी है, लेकिन कंपनी सैलरी की बात नहीं करेगी, वो तो ग्रॉस इनकम की बात करेगी कि पूरे ईयर में कितना नेट वर्थ है उनका। तो नेट वर्थ की बात की जाती है, राइट। तो अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए उनको दायरा बढ़ाना होगा, अपने अप्रोचेस को बढ़ाने होंगे, दूसरे कंट्री से उनको कनेक्ट करना है, और वो कनेक्शन के लिए उनको चाहिए इंग्लिश लैंग्वेज। सिमिलरली आप इसे समझ लीजिए, सैमसंग एक मोबाइल फोन वो है तो अदर कंट्री से, अब अगर वो इंडिया में आके बेच रहा है तो उन्होंने देखा कि यहाँ पर हिंदी भाषी लोग हैं, सो दे हैव हायर्ड Hindi speakers and now they are selling to their customers. If they see that in other countries like English native speakers where they live, definitely they will only hire the English speakers because they want to sell their product, they want to promote their products. So this will highly develop and networking also. इससे क्या होता है कि आपका networking बढ़ेगा. It will help you to deliver presentation and speeches. देखिए कई बार speeches में आपको बुला लिया जाता है और presentation देना होता है. Similarly एक खिलाड़ी को बुला लिया जाता है मैन ऑफ द मैच के लिए, and now he delivers his dialogues. Now he gives a speech in Hindi. Only few number of people will understand, but while you communicate in English, broader number of people will understand that. So that is why it is important in presentation also. Now it will also has a great importance in the various job positions also. So in a company there are various designation positions are there, and you can apply for that. And for that you need to improve your English communication skills. It will help you to build up good customer relations also, and it will give you good promotions in your career also. So हर कोई चाहता है कि बिजनेस में एक ग्रोथ हो, हर कोई चाहता है कि अपने प्रोफेशन में एक ग्रोथ हो, डेवलपमेंट हो, और वो डेवलपमेंट कैसे आएगी? आपके कम्युनिकेशन की वजह से। कौन सी कम्युनिकेशन? चाहे वो हिंदी बोलो चाहे इंग्लिश बोलो, बट इंग्लिश को अगर आपने ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया मीन्स एक प्रोफेशनल चीज़ों पर आप इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। सो प्रोफेशनल कैरियर को शेप करना है। ऑलराइट, नाउ वी शैल डिस्कस अबाउट द बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। Yeah. देखिए बैरियर्स क्या होता है? एक रुकावट है, मतलब जिसकी वजह से आपका कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है। अब किस तरह की रुकावट हो सकती है? जैसे कि नॉइज, आप अपने फ्रेंड से डिस्कस कर रहे हैं और कहीं बहुत ज़्यादा नॉइज हो रहा है, जिसकी वजह से कम्युनिकेशन में डिस्टर्बेंस हो रहा है। तो इस तरह की जो बैरियर्स होते हैं जिसकी वजह से हम कम्युनिकेशन नहीं कर पाते, जैसे कि इंफॉर्मेशन ओवरलोड, बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेशन आपको एक बार में दे दिया गया है, इन वन गो वी कैन नॉट अंडरस्टैंड दैट। पुअर लिसनिंग स्किल्स, आपकी अगर लिसनिंग स्किल्स बहुत ही पुअर है, सो उसमें रिटेंशन में प्रॉब्लम आई। रिटेंशन यानी कि उसको याद करने में, समझने में। रॉन्ग एजम्पशंस, गलत फहमी हो सकती है, राइट, गलत आकलन आप करते हैं। लैक ऑफ प्लानिंग, कल्चरल बैरियर्स, लैंग्वेज बैरियर्स, ये कुछ बैरियर्स हैं, इमोशन बैरियर्स, जिसकी वजह से आपके कम्युनिकेशन में जो है फ्लो नहीं हो पाएगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं कि इस तरह के बैरियर्स को हम कैसे रोक सकते हैं, क्या करना चाहिए हमको। Is it visible? Screen is visible, Shilpa? Yes, actually some problem is coming in network issue. Yes, sir. You continue. Okay. Now, ओवरकम का मतलब होता है इस पर काबू पाना। इस तरह की प्रॉब्लम्स को हम कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं? सबसे पहले हमको ये करना चाहिए कि लिसनिंग स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहिए। तो लिसन टू अंडरस्टैंड। इफ यू आर लिसनिंग टू मी यू विल अंडरस्टैंड, राइट। स्पीकिंग इज Right. गोल्ड बट लिसनिंग इज डायमंड। Yeah. तो लिसनिंग एक डायमंड, इसको हमें अप्लाई करना है, इसको हमें समझने के लिए। तो इस तरह की चीजें हैं जो मैं यहाँ पर दिखाना चाह रहा हूँ कि बी सेंसिटिव टू रिसीवर्स पॉइंट ऑफ व्यूज, यूज डायरेक्ट एंड सिंपल लैंग्वेज, डू नॉट यूज डेकोरेटिव वर्ड। बहुत ही भारी भरकम वोकैबुलरी यूज कर रहे हैं, आप ये शो करना चाह रहे हैं कि हाँ मेरी इंग्लिश अच्छी है। नो, दैट इज नॉट कम्युनिकेशन, दैट इज अ बैरियर प्रॉब्लम। सो यूज प्रॉपर चैनल्स, सही चैनल्स का यूज करिए। मान लीजिए आपको सर ये इंफॉर्मेशन भेजना है अपने टीचर को, और आपने व्हाट्सएप पे मैसेज लिख के भेज दिया, अगर उससे अच्छे तरीका कोई चैनल आप यूज कर सकते हैं जैसे मेल करना, राइट। तो ईमेल अगर आप करते हैं तो प्रोफेशनल कहलाएगा, और सोशल मीडिया में अगर आप टेक्स्ट कर रहे हैं सो दैट विल नॉट बी एज ए प्रोफेशनल। सो चैनल सही यूज करना होगा आपको। इसी तरह से आपको समझना होगा लर्न टू यूज सपोर्टिव कम्युनिकेशन ऑल्सो। तो कई बार क्या होता है कि आपने
आपने देखा होगा कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज है, मान लीजिए किसी कंट्री में गया और वहाँ पर हिंदी बोल रहा है, बट वहाँ पर एक इंटरप्रेटर होता है, ट्रांसलेटर होता है, एंड ही takes the support of that. So if we are taking that support also, that's not good. इसी तरह से आप गूगल ट्रांसलेट करके समझ सकते हैं, डिक्शनरी यूज करके उस वोकैबुलरी को समझ सकते हैं। मीन्स आपको एक सपोर्ट लेना है। सो बी ब्रीफ, शॉर्ट करिए अपने डिस्कशन को, कोई ज्यादा भारी भरकम वर्ड डेकोरेटिव यूज नहीं करना है। सो कीप योर माइंड ओपन, एनकरेज योर सबऑर्डिनेट्स एंड दिस ऑल। सो लिसनिंग इज वन ऑफ द important thing. So we have to listen somebody idea very patiently. Now, how to improve your communication skills? हर लैंग्वेज में अप्लाई होगा, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो। सबसे पहले हमें इसको इम्प्रूव करने के लिए हमें एक पॉजिटिव एटीट्यूड की जरूरत है। पॉजिटिव एटीट्यूड मीन्स यू आर कॉन्फिडेंट। सो इफ यू आर कॉन्फिडेंट इनफ, so you can crack the interview, you can go ahead in your life. So improve your listening skills, improve your speaking skills, think before you speak. जो भी आप बोल रहे हैं उस पर 2 बार विचार कर लीजिए कि आप किस तरह का स्टेटमेंट देने वाले हैं। इम्प्रूव योर राइटिंग स्किल्स ऑल्सो। इन सभी स्किल्स पर आपको इम्प्रूव करना है, कमांड आपको बनाना होगा, एंड देन फाइनली यू कैन से दैट योर कम्युनिकेशन हैज इम्प्रूव। देखिए, इम्प्रूवमेंट तो पूरी लाइफ लग जाती है, मीन्स होल लाइफ, इट टेक्स होल लाइफ, इट इज नॉट ए वन डे गेम। नाउ you should also take care about your body language and be brief while you are speaking. Right. So keep a smile. Smile is a very important thing. If you are smiling during your conversation, your discussion also, it gives them some positive vibes also. So you can see that balancing something. कम्युनिकेशन को अगर आप इंप्रूव करना चाहते हैं तो आपको उसको बैलेंसिंग करना होगा। किसको बैलेंसिंग करना है हमें? लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। देखिए, मिनिमाइज डिस्ट्रैक्शन। जितना डिस्ट्रैक्शन है, आप पढ़ रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, उस समय आप रीडिंग स्किल्स को इंप्रूव कर रहे हैं, लेकिन मोबाइल फोन में अचानक एक टेक्स्ट आता है, आप फिर उसको स्क्रॉल करने लगते हैं, देखने लगते हैं, तो क्या हुआ? आपका डिस्ट्रैक्शन हो गया, उसके वजह से कम्युनिकेशन जो है ब्लॉकेज हो गया। राइट नाउ आई मूव अहेड। प्रायोरिटाइज लिसनिंग ओवर स्पीकिंग। कोशिश ज़्यादा करेंगे कि आप लिसनिंग स्किल को ज़्यादा इंप्रूव करें। जैसे कि हमने स्टार्टिंग में देखा था कि सबसे ज़्यादा जो रिटेंशन है वो लिसनिंग स्किल से ही हमको मिल रहा है। क्वेश्चंस पूछिए अगर आपको डाउट है, लिसनिंग, लिसन केयरफुली एंड देन रिस्पॉन्ड। देखिए, प्रैक्टिस क्या है? प्रैक्टिस वही है जिस चीज़ को आप रिपीटेशन कर रहे हैं बार बार, तो आपको सही उच्चारण के बारे में पता चलेगा, प्रोनाउंसिएशन स्किल्स होगा, और यही इंपॉर्टेंट है। Right, how to you articulate the word. Also practice on your self control also. कई बार आप बस्ट हो जाते हैं, एंगर हो जाते हैं, गुस्से में आप कुछ भी बोल देते हैं, दैट इज ऑल्सो नॉट गुड। आप अपने कुलीग के साथ जो है आपको पेशेंस बना के रखना है। सो यू हैव टू बी ब्रीफ while you are conveying your message. So do not use a very lengthy sentences, use brief words. Now I go ahead. अब हम आगे बढ़ते हैं और कुछ और डिस्कशन हम कर लेते हैं। देखिए, ये यहाँ पर मैंने बताया है कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए हमें रिटन, नॉन वर्बल, प्रेजेंटेशन स्किल्स और आपके पेशेंट एजुकेशन, राइट, कंपैशन, कल्चरल अवेयरनेस, इन सब चीज़ों की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, जब भी तो हमारा कम्युनिकेशन इफेक्टिव होगा। सो ट्रस्ट रखिए अपने ऊपर, कॉन्फिडेंस को बना के रखिए। इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए हमें नेचुरल डिलीवरी करनी है, मतलब जो आपकी इंग्लिश है वो नेचुरल है, उसी को यूज करते हुए आप फ्लुएंसी को आप बना सकते हैं। फ्लुएंसी का मतलब होता है एक धारा प्रवाह में बोलना, फ्लो बना के रखना। प्रोनाउंसिएशन स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। सो यू शुड ऑल्सो यूज क्लैरिटी ऑफ योर टोन, क्लैरिटी ऑफ द स्टेटमेंट, क्लैरिटी ऑफ द वर्ड। स्पेलिंग भी अगर मिस्टेक है तो यानी कि क्लैरिटी नहीं है। सो इस तरह से हमको ध्यान रखना है कि मदर टंग इन्फ्लुएंस भी होता है, MTI प्रॉब्लम होता है। मान लीजिए कोई स्टूडेंट किसी क्षेत्र का है, हरियाणा से है या किसी और अलग क्षेत्र से है, तो थोड़ा सा उसके लैंग्वेज बोलने में आपने सुना होगा कि प्रोनाउंसिएशन प्रॉब्लम होती है, तो वो भी आपको इम्प्रूव करना होगा, MTI प्रॉब्लम, राइट। सो वेल ग्रूम्ड, आपके ड्रेसिंग कोड जो है अच्छा होना चाहिए। अगर आपको पता है कि आप इंटरव्यू में जा रहे हैं, सो ड्रेस कोड
कैसा होना चाहिए, प्रोफेशनल लुक होना चाहिए, राइट। तो जीन्स टी शर्ट में इस तरीके जो प्रोफेशनल नहीं कहलाएगा, so we have to be professional during that time also. So this is called effective communication. Always smile, maintain good eye contact, personalize your approach also. Do not try to make up your answer. अगर आपको उत्तर नहीं आता तो उसको आप बहानेबाजी मत करिए, या आप प्रिटेंशन या कुछ और आंसर को दे रहे हैं, so that is not good. Simply you can say that I do not know, or please clarify your questions. So be relaxed, be yourself. So अपना खुद का एक जो है प्रैक्टिस करिए, ना कि किसी की कॉपी करनी है। सो सिंपल हम कह सकते हैं कि प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। सो क्या एडवांटेजेस मिलेगा आपको इफेक्टिव कम्युनिकेशन से? सिंपल, यू विल गेट जॉब सेटिस्फैक्शन, यू विल इंक्रीज द लॉयल्टी एंड हैंडल द कॉन्फ्लिक्ट्स ऑल्सो। कॉन्फ्लिक्ट्स होती है कुछ छोटी मोटी प्रॉब्लम्स, कोई कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम हो सकती है वर्किंग के समय, सो उसको हैंडल करने में आपकी एबिलिटी आएगी। सो कॉम्पिटेंसी डेवलप होगा। सो ब्रिंग मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी। इट विल ऑल्सो हेल्प यू टू स्मूथ रनिंग ऑर्गेनाइजेशन। किसी कंपनी को चलाने के लिए बहुत जरूरी है इफेक्टिव कम्युनिकेशन। टीम बिल्डिंग में काम आएगा। इट विल फ्यूअल योर इनोवेशंस। इनोवेशंस होता है कोई भी एक नवीनीकरण कर रहे हैं, कुछ नया कर रहे हैं आप किसी काम में, तो उसमें भी एक जो है ऊर्जा मिलेगी आपको, सोर्स मिलेगा आपके इफेक्टिव कम्युनिकेशन की वजह से। सो बेसिस ऑफ लीडरशिप, देखिए यही एक आधार है जो लीडरशिप क्वालिटी को शो करता है। देखिए अगर आप भीड़ में भाग रहे हैं तो हो सकता है कि आप आगे ना चल पाए, तो अगर आप खुद अकेले खुद प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, सो वो बहुत जरूरी है। सो प्रैक्टिस इज गोइंग टू हेल्प यू, राइट। सो एट द Right. एंड आई विल शेयर सम पॉइंट्स, लाइक कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है, स्ट्रेटजीज। देखिए कई बार आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं और बीच बीच में कुछ इस तरह के वर्ड यूज कर रहे हैं, इस तरह के कुछ वर्ड यूज कर रहे हैं, तो ये क्या है, ये कॉन्वर्सेशन का ही पार्ट है। बट अगर बहुत ज्यादा इसको यूज कर रहे हैं तो ये इनफॉर्मल भी हो सकता है। और कुछ एग्जेक्टिव्स होते हैं, फ्रेजेस होते हैं, आप इसको कम यूज करिए, बस ज्यादा नहीं यूज कर सकते। आई थिंक प्रोबेबली कुछ इस तरह की चीजें हैं जो आपको ध्यान रखना है। सो मास्टर इन योर सब्जेक्ट, रिमेन पॉजिटिव एंड एंथुसियास्टिक। हमेशा उत्साह से काम करिए, कोई प्रेशर नहीं है आपके ऊपर, बस आप कम्युनिकेशन प्रोसेस को आप समझिए। देखिए और भी बहुत सारी स्ट्रेटेजीज हो सकता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में, जैसे कि मैंने आपको ड्रेस कोड के बारे में बताया था। और इंटरव्यू में अगर आप जा रहे हैं तो आपका बोलना इंपॉर्टेंट नहीं रहा, अब आपके नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी चेक होगा। तो इंटरव्यू में हमें ध्यान रखना है कि जो आप वेल ग्रूम्ड हैं, वेल पॉलिश शूज हैं, एलिगेंट वाइट शर्ट आपने पहना हुआ है, तो इसके भी इम्पोर्टेंट जो है फैक्टर आपको देखने को मिलेगा, राइट। सो अवॉइड स्ट्रॉन्ग कॉलेजेस, इयररिंग्स, बॉडी पियर्सिंग। देखिए कॉलेजेस क्या होता है, जैसे आपने कोई परफ्यूम, बॉडी लोशन वगैरह कुछ इस तरह का यूज कर लिया है और इंटरव्यू में वो सब चीजें बिल्कुल इनफॉर्मल कहलाएगी। सो वी शुड नॉट use this kind of things also. It should be light, it should not be heavy perfume. So be formal in your attire, wear neutral color. देखिए अब हम कुछ ग्रीटिंग्स और इंट्रोडक्शन अगर हम बात कर रहे हैं इंटरव्यू में, और इंग्लिश में आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो आपको क्या है मिला, एक चांस मिला है, एंड मेक दिस चांस अ गुड इम्प्रेशन हो। तो इम्प्रेशन कैसे क्रिएट होगा, आपके ड्रेस से, आपके माइल्ड स्माइल से, और ग्रीटिंग प्रॉपर्ली। इंट्रोडक्शन आप इफेक्टिवली दीजिए, आई कांटेक्ट को मेंटेन रखिए, राइट। रिमेन पॉइज्ड एंड कॉन्फिडेंट, बिल्कुल कॉन्फिडेंट आप रहिए। मेंटेन गुड posture and gestures. So these are important elements which we need to understand. Now these are some resources link, ये कुछ मैं आपको लिंक यहाँ पर शेयर करना चाहता हूँ। इंग्लिश स्पीचेस के लिए कुछ इस तरह के यूट्यूब वीडियोस हैं, आप इसको स्पीकिंग के लिए ये इम्प्रूव करिए। So if you go to this link, you will see many speeches are there, English speeches are there. नीचे सबटाइटल चल रहा है, उसको आप देखिए और इंग्लिश लिसनिंग को इम्प्रूव करिए। ऑनलाइन डिक्शनरी टूल का यूज करिए। कई बार बहुत सारे वोकैबुलरी नहीं समझ में आता, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, उसके मीनिंग्स को समझिए। और thesaurus.com ये डिक्शनरी है, इसमें जाके आप चेक करिए। और भी हो सकता है, जैसे कि आपने एक ईमेल टेक्स्ट किया और आपको लग रहा है कि हो सकता है कि फुल स्टॉप, कॉमा या कोई वर्ड का कोई स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं है, तो ऑनलाइन ग्रामर चेक टूल आपको मैं यहाँ पर बता रहा हूँ।
grammarly.com। तो ये बहुत ही अच्छा टूल है जिसको आप यूज कर अपने ग्रामर को इम्प्रूव कर सकते हैं, यानी कि राइटिंग स्किल्स को आप लर्न कर सकते हैं, राइट। और एक ओपन लाइब्रेरी रिसोर्सेज है, लाइब्रेरी पे आप खुद बुक्स पढ़िए, ऑनलाइन लाइब्रेरी, तो रीडिंग स्किल्स भी आपको साथ साथ लर्न करने को मिलेगा। सो थैंक यू सो मच, इट वाज अ ग्रेट सेशन। So thank you so much, sir, for giving us your valuable time. Your PPT is just wonderful. I think students have cleared all those things, what communication is, why we need it. So sir, thank you so much, and it will be a great session, sir. I also heartily thank to all the team of Quarterstop, and thank you to Shilpa, Shil. She has made the session wonderful. She had coordinated very well, and I also assure you that all the participants that communication will help you to lead ahead. So give the importance to this. Spare some time for improving your communication. Listen, and listen. So this is the practical things. And in a reading, so there are various resources online, offline also. Find out more reading materials and go ahead. And in writing also, you can start writing your ideas, and also use e-blogging where you can express your ideas. So this will definitely help you out in the coming future, which will shape your future also. So I just give my uh, blessings to all the participants that you go ahead and get success in your life. Thank you so Thank, much for helping out and making the session so wonderful. Thank you, Shilpi. thank you, sir. Sir. Okay, sir. Thank you, sir. Take care. Bye bye. All right. Bye.